प्यारे विद्यार्थियों, सब तो पहला आप सब ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੀਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜਿਹੜੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕੰਡਕਟ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਟੈਸਟ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10th ਦੇ ਮੈਥ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਲਾਸਟ ਟੂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਪਾਰਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ। ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਫਰਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 10th ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ। सब तो पहला अपने को आंदा है यूक्लिड परमेका या यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड वंड प्रमेय, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। हाँ जी, ये की होंगी है अपने कोल भाज बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस बाकी, यानी डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस बाकी यानी कि रिमाइंडर। हाँ जी, ये जो आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो उत्थे a इज टू बी क्यू प्लस आर लिखते हैं। क्यू अपने को कोशिएंट होंदा है ते आर होंदा है रिमाइंडर। सो a नु जदों आपां b दे नाल डिवाइड करते हैं तो आपां नु q मिलता है इत्थे कोशिएंट ते सोल्व करके लास्ट दे विच आपां नु मिलता है रिमाइंडर यानी कि बाकी। ये होंदा है भाज भाजक भागफल। हाँ जी, ये तो सब तो पहला फॉर्मूला जो अपने को एक्सरसाइज 1.1 ਦੇ ਵਿੱਚ यूज ਹੁੰਦਾ है। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ HCF ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ਨੂੰ यूज ਕਰਕੇ ਕਰਨੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਫਿਰ 1.2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1.2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੋ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਕਿ LCM HCF ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ HCF ਤੇ LCM ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ HCF into LCM is equals to product of numbers, यानी कि संख्यावां दा गुणनफल। संख्यावां दा गुणनफल। हाँ जी, ये जो रूल है अपने को HCF into LCM बराबर संख्यावां दी गुणा, ये रूल सिर्फ दो संख्यावां ते काम करता है, दो तो ज्यादा संख्यावां ते कदे भी काम नहीं करता। सो इस गल नूं तुसीं माइंड दे विच रखना है, इस वाले रूल नूं। नैक्सट अपने कोल उसी एक्सरसाइज यानी 1.2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ 6 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ 0 ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੈਨ ਨੈਵਰ एंड विद 0, यानी यह सिफर ते कदे भी खत्म नहीं हो सकता। इसी तरह एक एग्जांपल है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਫਰ ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ 0 ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦੀਆਂ ਘਾਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ 6 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਗੁਣਾ 3 ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, 6 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਹੋਏਗਾ 2 ਗੁਣਾ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ n। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 5 ਦੀ ਘਾਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ 0 ਤੇ ਖਤਮ नहीं होएगा।
ਸਿਮਿਲਰਲੀ 4 raised to power n ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਫਰਦਰ n, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 5 ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਕਦੇ 0 ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। √5 √3 √2 ਉਹ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਅਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ √2 √3 √5 √7 ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ। यानी irrational numbers। हाँ जी, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ 9th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਭਾਵੇਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਰੂਪ ਅਸ਼ਾਂਤ ਅਨਾਵਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। दूजे पासे ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਰੂਪ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ यानी कि रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स यानी जिन्होंने p/q फॉर्म च लिखा जा सकता है, जिथे p ते q संपूर्ण संख्यावां हुंदियां ने ते q जिहड़ा हुंदा है वो नॉन जीरो हुंदा है। हाँ जी, उन्हां दा जिहड़ा दशमलव रूप हुंदा है, इन्हां दा जिहड़ा दशमलव रूप वो हुंदा है शांत जां अशांत आवर्ती। शांत यानी टर्मिनेटिंग और ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग दे नाल ये रिपीटिंग हुंदा है। 9th क्लास च कीते सी क्वेश्चंस आपां, तुहानूं याद होएगा। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਰੂਪ ਉਹ ਅਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਾਵਰਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਰੂਪ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ 0.6 ਦੀ ਬਾਰ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, 1.3 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ 1.4। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਸੀਮਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਦਸ਼ਮਲਵ ਰੂਪ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜਾਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸੇ 5 ਵਟੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ 20। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਸੰਖਿਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ 2 ਤੇ 5 ਦੀਆਂ ਘਾਤਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਸਿਰਫ 20 ਦੇ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਆਇਆ, 2 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਆਈ ਤੇ 5 ਦੀ ਘਾਤ 1 ਆਈ। ਸਿਰਫ 2 ਤੇ 5 ਦੀਆਂ ਘਾਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਾਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਰ ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ 2 ਵਟੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ 12। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 12 ਹੈ, 12 ਦੇ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 2 ਦੂਣੀ 4 ਤੀਏ 12। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਦੀਆਂ ਤਾਂ 2 ਘਾਤਾਂ, 2 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਆ ਗਈ, ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ 3, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ 3 ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ 3 ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਰੂਪ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਦੇ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 2 ਦੀਆਂ, ਕੇਵਲ 5 ਦੀਆਂ ਜਾਂ 2 ਅਤੇ 5 ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਰੂਪ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਦੇ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 2 ਕੇਵਲ 5 ਜਾਂ 2 ਅਤੇ 5 ਦੀਆਂ ਘਾਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਰੂਪ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਗੇ, यानी कि टर्मिनेटिंग होणगे। हाँ जी, कई बार अपने को क्वेश्चन ये आ जाता है कि अपन कोई परिमेय संख्या देती तो पूछा जाएगा कि वह जिहड़ा दशमलव रूप है यानी डेसिमल फॉर्म है वो टर्मिनेटिंग होएगी या नॉन टर्मिनेटिंग होएगी। हाँ जी, कुछ क्वेश्चंस इस तरह के होंगे ने जिवें से 3/30 ले लीए आपां। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 30 है ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 30 ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 30 ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣ ਗਏ 2 3 6 6 5 30। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 3 ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਦੇ ਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅਤੇ 5 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਖਿਆ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਰੂਪ ਰੋਂਗ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਰੂਪ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। सो स्टूडेंट्स इसका दशमलव रूप अशांत दस देंगे ने कई बार, क्यों? बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंस ऑफ 3। बट हुण इस क्वेश्चन दे विच आपां फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि 3 ते 30 तां कटिंग पॉसिबल है, दैन वी गैट 1/10। हुण जेकर आपां हर नूं देखिए, हर दे भाज गुणनखंड देखिए तां उहदे विच सिर्फ 2 ते 5 दीयां घातां शामिल ने। इट मीनस कई बार क्वेश्चन दे विच स्टेटमेंट दे विच आपां नूं इस तरह दी परिमेय संख्या या रैशनल नंबर दिता होएगा जिहदे विच कटिंग पॉसिबल होएगी, ਉਹ वाली संख्या जिहदे करके अपने कोल हर दे भाज गुणनखंड 2 ते 5 दीयां घातां तो बिना कोई होर घात होर किसी अंक की घात दे रूप च आ सकते सी, वो कट हो जाती है। जिवें इत्थे 3 एक्सट्रा सी, वो 3 कट हो गया। सो इस तरह के क्वेश्चंस का बड़ा ध्यान रखना है, कई बार कटिंग करनी पैंदी है। उस तो बाद देखना है कटिंग तो बाद कि हुण जो अपने कोल हर आ गया उहदे भाज गुणनखंडां दे विच ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਰੂਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 0.01 001 0001 00001 ਸੋ ਔਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੈਸੀਮਲ ਫਾਰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। हाँ जी, अगे अपने को आ रहा है चैप्टर नंबर 2 पॉलीनोमियल्स बहुपद। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ 2.1 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਹੁਪਦ ਦੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ px ਮੰਨ ਲਓ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ px, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ x ਧੁਰੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਬਹੁਪਦ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ 3 ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 3 ਸਿਫਰਾਂ, ਜੇ 2 ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਤਾਂ 2 ਸਿਫਰਾਂ, ਜੇਕਰ 1 ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 1 ਸਿਫਰ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਗ੍ਰਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏ ਸੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਵੀ x ਧੁਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਫਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 0 ਸਿਫਰਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ 2.1 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 2.2 ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੋ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ax² bx c ਟਾਈਪ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਰਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਫਰਾਂ ਤੇ ਗੁਣਾਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
सिफर आप लेंदे सी जेकर अल्फा ते बीटा सिफर होण तो सिफर का जोड़ हुंदा यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए यानी कि माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्केयर का गुणांक हुंदा अपने कोल कफिशिएंट गुणांक नूं बोलते हैं आपां कफिशिएंट। उस तो बाद आंदी सी अपने कोल सिफरां दी गुणा यानी कि अल्फा ते बीटा दी गुणा। ये अपने कोल आंदा सी कॉन्स्टेंट टर्म अचल पद जिन्हों आप बोलते हैं वो टर्म जिहदे नाल एक्स नहीं लग्या हुंदा या वेरीएबल नहीं हुंदा। उस तो बाद नीचे आंदा है अपने कोल एक्स स्केयर का गुणांक हाँ जी ਇਹਦਾ मतलब है कि बराबर आ गया अपने कोल सी ओवर ए दे। हाँ जी अचल पद नूं बोलते हैं आपां कॉन्स्टेंट टर्म हाँ जी जेकर अपने कोल सो सिफरां दी जोड़ ते सिफरां दी गुणा दिती होवे जोड़ यानी कि एस ते गुणा यानी कि प्रोडक्ट तो आ गया अपने कोल पी सम यानी जोड़ दिता होवे तो आपां जिहड़ा बहुपद है वो लभ सकते हैं। वो बनता है अपने कोल एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी। हाँ जी ये हुंदा बहुपद ये किते भी कोई इक्वल टू 0 या इक्वल टू समथिंग कुछ नहीं लिखना हुंदा आपां एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी बन जाता है अपने कोल बहुपद। ये नाल दे भी तुसीं क्वेश्चनस कीते सी। इस तो बाद जेकर आपां तीन घाती बहुपद की गल करिए तो वह हुंदा अपने कोल अपने कोल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्केयर प्लस सी एक्स प्लस डी। हालांकि ये तुहाडे सिलेबस दे विच नहीं सी बट फिर भी आपां इहदे फॉर्मूले कर लैंदे आ जस्ट ताकि जेकर किते कोई तुहानूं क्वेश्चन मिलता है तो तुसीं वो अटैम्प्ट कर सको। हाँ जी इस केस दे विच जेकर आपां सिफरां दे जोड़ की गल करिए सिफरां ने अल्फा बीटा ते गामा उन्हां दा जोड़ यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये बराबर हुंदा है माइनस बी ओवर ए दे। बी है एक्स स्केयर का कोफिशिएंट इत्थे ते ए है अपने कोल एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। उस तो बाद आंदा है अपने कोल दो टर्म्स का प्रोडक्ट ते उन्हां दा जोड़ यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अल्फा का बीटा नाल प्रोडक्ट गुणा यानी कि फिर बीटा की गामा नाल गुणा फिर अल्फा ते गामा की गुणा इन्हां दा आपस च जोड़ ये बराबर हुंदा है अपने कोल सी बटे ए दे जिथे सी है एक्स का कोफिशिएंट ते ए अपने कोल एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यानी कि गुणांक। उस तो बाद जेकर तिन्हां दे प्रोडक्ट की गल करिए अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा यदी गल करिए तिन्हां दे प्रोडक्ट की तो यह हुंदा है अपने कोल माइनस डी ओवर ए। डी है अपने कोल कॉन्स्टेंट टर्म इस केस दे विच यानी कि अचल पद लास्ट टर्म जिहदे विच एक्स नहीं हुंदा ते नीचे अपने कोल ए ही है यानी एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। हाँ जी अगे आंदा है अपने कोल चैप्टर नंबर 3 जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरीएबल्स यानी कि 2 चल वाले रेखी समीकरणों के जोड़े। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ क्वेश्चन आम ही आ जाता है टैसट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੇਸ क्वेश्चन ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ a1x plus b1y plus c1 equals to 0। मान लो ये पहली इक्वेशन दी हुई है आपां नूं ते दूजी a2x plus b2y plus c2 equals to 0 ये सैकेंड इक्वेशन है। तो आप पहला देखते हैं कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ दो इक्वेशनस ने किस तरह ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ रिप्रेजेंट ਕਰਨਗੀਆਂ यानी कि किस तरह ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਦੀਆਂ इक्वेशनस ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਾਟਵੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਪਾਤੀ यानी कि कोइंसिडेंट ਲਾਈਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। सो ये आप पहला पता करते हैं a1 ओवर a2 की वैल्यू कढ़ते होंगे फिर b1 ओवर b2 की वैल्यू कढ़ते हैं b1 ओवर b2 की फिर कढ़ते होंगे आप लास्ट दे विच c1 ओवर c2 की वैल्यू। फिर अपने कोल अगे 3 कंडीशनस होंदियां ने वो कंडीशनस की होंदियां ने। सब तो पहला होंदी है अपने कोल इफ a1 ओवर a2 नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2
यानी कि पहला अनुपात दूजे अनुपात के बराबर ना आवे तो अपने कोल हुंदियां ने काटवीਆਂ रेखावां विलक्षण हल ते संगत जोड़ा। काटवीं रेखावां के यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स, विलक्षण हल यानी कि यूनीक सोल्यूशन, ते तीसरा संगत जोड़ा यानी कि कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो उस केस दे विच इहनूं आपां कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस यानी कि ये जिहड़ा जोड़ा होएगा समीकरणों का इहनूं संगत जोड़ा बोलते हैं। दूजा हुंदा अपने कोल सैकेंड, इफ जेकर A1 ओवर A2 तो बराबर आ जाए B1 ओवर B2 दे, पर यह अगे बराबर ना आवे C1 बटे C2 दे, तो अपने कोल की बनता है। इस तरह के केस दे विच जिहड़ियां रेखावां हुंदियां ने वो समांतर रेखावां हुंदियां ने। हाँ जी, जेकर रेखावां समांतर होणगियां तो वह कट्टणगियां नहीं, तो जेकर वो कट्टणगियां नहीं तो आपां नूं कोई हल भी नहीं मिलूगा, कोई बिंदु ऐसा नहीं मिलूगा जिथे वो कट्टण ते आपां नूं हल मिले। सो कोई हल नहीं। ते तीजा इस तरह का जदों आपां नूं हल ही नहीं मिलिया तो जिहड़ा जोड़ा हुंदा समीकरण का उहनूं आपां बोलदे हां असंगत जोड़ा। हाँ जी, तीजी टाइप अपने कोल तीजी कंडीशन की हो सकती है, A1 बटे A2 बराबर आ जाए B1 बटे B2 दे, ते फरदर ये बराबर आ जाए C1 बटे C2 दे। तो उस केस दे विच अपने कोल अनेकां हल मिलते हैं। रेखावां हुंदियां ने संपाती संपाती रेखावां यानी कि एक रेखा ते दूजी रेखा उसके उपर ही होएगी जदों उहदा ग्राफ प्लॉट करांगे। दूजा अनेकां हल, तीजा क्योंकि ये हल मिल रहा है तो अपने कोल इस तरह के जोड़े नूं भी आपां संगत जोड़ा कहांगे। हाँ जी, याद रखियो बच्चों, जदों दो रेखावां दा ग्राफ आपस च कट जाता है उस केस दे विच अपने कोल जिथे कटिया उदों एक हल मिलता है, यानी कि पहला केस काटवीं रेखावां च विलक्षण हल। आ जिहड़ा हुंदा है बिंदु जिथे ये कटदियां ने उत्थों x की वैल्यू ते उत्थों y की वैल्यू जो बनती है अपने कोल उहनूं ही आपां एक विलक्षण हल बोलते हैं। एक हल मिलता है उस केस दे विच जेकर रेखावां समांतर लंघ जाण एक दूजे नूं बिना कट्टे तो कोई हल नहीं मिलता। ते तीसरा केस सी जिहड़ा वो इत्थे देख लैंदे आ, जेकर अपने कोल A1 ओवर A2 B1 ओवर B2 ते C1 ओवर C2 बराबर आ जाते हैं तो एक रेखा दे उपर ही दूजी रेखा होएगी। ताही करके क्योंकि हर एक बिंदु ते एक दूजे नूं कट रही ने, एक दूजे के उपर होने का मतलब हर एक बिंदु ते एक दूजे नूं कट रही ने, तां करके इन्हां दे अनेकां बिंदुआं ते एक दूजे नूं कट रही ने, तां ही इन्हां दे अनेकां हल बनते हैं। हाँ जी, इस तो बाद पहला तो जिहड़ियां कंडीशनस आपां कीतियां उन्हां दे उत्ते क्वेश्चनस पूछे जा सकते हैं, सीधे क्वेश्चनस कि किस कोई भी रेखी समीकरणों का जोड़ा दे के तुहानूं पूछा जा सकता है कि उसके कितने हल हो सकते हैं। सो तुसीं कंडीशन चैक करके दस दोगे कि कितने हल होणगे। होर जिहड़े क्वेश्चनस उसदे विच्चों बन सकते हैं वो होणगे डायरैक्ट क्वेश्चन, यानी कि दो इक्वेशनस तुहानूं दे दित्तियां जाणगियां, उन्हां नूं सोल्व करके एक्स ते वाई की वैल्यू कढनी होएगी। उहदे लई आपां मैथड्स जिहड़े यूज़ करते हैं, तुसीं किहड़े-किहड़े मैथड कीते ने, एक तां ग्राफिकल मैथड कीता, दूजा कीता सी आपां सबस्टिट्यूशन मैथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि, ग्राफिकल मैथड नूं आपां आलेखी विधि बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि नूं आपां सबस्टिट्यूशन मैथड बोलते हैं। जिहदे विच आपां एक इक्वेशन दे विचों वैल्यू कढदे सी, दूजी च भरदे सी। तीसरी आपां कीती सी एलिमीनेशन मैथड यानी कि गुणांक बराबर करन दी विधि।
ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਤਿਰਛੀ ਗੁਣਾ ਵਿਧੀ। यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मैथड। हाँ जी, जो सीधा क्वेश्चन मिलेगा तो कि दो इक्वेशन दी जो एक्स ते वाई की वैल्यू निकालनी है तो तुसी आह वाला मैथड यूज़ करना है, बिकॉज दिस इज़ बेस्ट मैथड तो सब तो ईजी मैथड है। सो जो भी कोई क्वेश्चन मिलेगा तो तुसी आह वाला मैथड ही यूज़ करो, क्योंकि उत्थे किते नहीं मैंशन किया होगा कि किहड़ा मैथड तुसी यूज़ करना है। सो ये घट सब तो घट टाइम लैंदा मैथड, सो ये तुसी ये मैथड उत्थे यूज़ करोगे। नैक्सट है 4th चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशनस, यानी कि दो घाती समीकरण। दो घाती समीकरण की हुंदा है अपने कोल? सब तो पहला तो देखते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्म की जिहड़ी इक्वेशन हुंदी है उन्होंने आपां बोलते हैं दो घाती समीकरण। हाँ जी, दो घाती क्यों बोलते हैं? ये x² हुंदा है, x की पावर 2 हुंदी है, यानी कि घात 2 हुंदी है, इसलिए दो घाती समीकरण। तो ये उत्ते कंडीशन हुंदी है नाल दी नाल कि ये जिहड़ा a है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जेकर a ही 0 बन गया तो आ टर्म तो अपने कोल खत्म होगी। तो जेकर स्केयर x दे स्केयर वाली टर्म खत्म होगी तो अपने कोल bx प्लस c बराबर 0 रह गया, तो वह बन जाएगी अपने कोल एक रेखी समीकरण, यानी कि लीनियर इक्वेशन। सो अपने कोल कंडीशन हुंदी है ए ते कि ए नहीं 0 होना चाहिए, बी वाला हिस्सा भी 0 हो सकता है, कॉन्स्टेंट टर्म भी 0 हो सकती है, उन्होंने तो बिना भी ये दो घाती समीकरण रहेगी, बट ए 0 नहीं होना चाहिए। इस तो बाद जो क्वेश्चन आम तौर पर टैसट के मिल जाता है वह होंगे कि तुहानूं कोई समीकरण दी होंगी है, पूछा जाता है कि वह समीकरण दो घाती है या नहीं। समटाइम्स की होंगे तुसीं उहदे विच कोई ना कोई फॉर्मूला यूज़ करते हो, ईदर a प्लस बी स्केयर का या a प्लस बी दे क्यूब का, कोई ना कोई फॉर्मूला यूज़ होंगे। फिर दोनों साइड तो कई बार x² वाली जी टर्म होंगी है वो दोनों साइड पर प्रेजेंट होंगी है, तो वह कैंसल हो जाती है दोनों साइड तो। फिर वह कैंसल होने तो बाद अपने को एक लीनियर जी होंगी है लीनियर इक्वेशन वो कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि रेखी समीकरण के विच। सो इस तरह के क्वेश्चन का ध्यान रखना। कई बार की होंगे कि क्यूब वाली दोनों पासे टर्म कैंसल हो जाती है, तो क्यूब वाली टर्म कैंसल होने तो बाद अपने को क्वाड्रेटिक मिलती है। कई बार देखे तो नहीं पता लगता कि अपने कोल जिहड़ी इक्वेशन है वह दो घाती है या नहीं। सो इस तरह के क्वेश्चन का बड़ा ध्यान रखना। पहला वो कोई फॉर्मूला लगता होया तो तुसीं वो लगा के देखना, बाकी जो आप प्रैक्टिस करांगे क्वेश्चन की वो क्वेश्चन आएंगे तुहाडे कोल। इस तो बाद अपने कोल जिहड़ा 4th चैप्टर दे विच आंदा है आपां दो घाती समीकरणों नूं सॉल्व करन दे क्वेश्चनस करते हैं फॉर्मूला यूज़ करके। डिस्क्रिमिनेंट मैथड, डिस्क्रिमिनेंट मैथड। हाँ जी, वो की हुंदा उहदे विच पहला आपां डी लभदे हां डिस्क्रिमिनेंट जो कि हुंदा b² माइनस 4ac। बी इत्थों आंदा हुंदा अपने कोल x का कोफिशिएंट -4 आपां लेना है, a ਅਤੇ c ਉਹਦੇ ਨਾਲ प्रोडक्ट की फॉर्म च आंदे ने। हुण d की जिहड़ी वैल्यू आंदी है, d की जिहड़ी वैल्यू होएगी ਉਹਦੇ बेस ते आपां दस सकते हैं कि जिहड़ी दो घाती समीकरण आपां नूं दित्ती गई है ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ मूल होणगे, यानी कि वेरीएबल ਦੀਆਂ वैल्यूज़ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ किस तरह ਦੀਆਂ हो ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। हाँ जी, जेकर ਤਾਂ ਹੋਏ केस 1, जेकर d है 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ मूल ਹੁੰਦੇ ਨੇ मूल वास्तविक ਤੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਹਨ। यानी कि आप लिखते हैं रूट्स आर रियल ते भिन्न भिन्न आप लिखते हैं डिस्टिंक्ट। मूल वास्तविक ते भिन्न भिन्न हैं। केस 2 जिहड़ा हुंदा है उस केस च हुंदा है अपने कोल डी की वैल्यू है जेकर 0 के बराबर तो हुंदे ने मूल वास्तविक, यानी एग्जिस्ट करते हैं। आंसर आऊगा तुहाडा वास्तविक ते बराबर या समान हैं। सो जिहड़ा तीसरा सो इनू आपां बोलते हैं रूट्स आर रियल एंड
इक्वल ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। केस 3 ਹੁੰਦਾ ਹੈ d ਲੈਸ ਦੈਨ 0 यानी कि ਜਦੋਂ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ -4 ਹੀ ਹੋਏ। हाँ जी उदों अपने कोल की हुंदा है मूल वास्तविक नहीं ਹਨ रूट्स आर नॉट रियल। उस केस दे विच आपां अगे क्वेश्चन नूं सॉल्व नहीं करते। इन्हां दोनों केसिस दे विच क्वेश्चन नूं अगे सॉल्व करते हैं तां कि जिहड़ा अपने कोल वेरीएबल जिहदे विच इक्वेशन है एक्स दे विच है तां एक्स की वैल्यू लभदे हैं अगे, जेकर उही इक्वेशन अपने कोल वाई च होवे तां फिर वाई की वैल्यू लभदे हैं। उहदे लई जिहड़ा फार्मूला हुंदा है वो हुंदा है अपने कोल x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी ओवर 2a। फिर आप ये फार्मूला यूज करके x दी वैल्यूज आप कढ़ लेने होंगे। एक तरीका यह होंगे, एक होर तरीका होंगे अपने कोल क्वाड्रेटिक इक्वेशन नूं सॉल्व करन दा, वो होंदा अपने कोल गुणनखंड बना के यानी कि फैक्टराइजेशन। सो जिहड़े भी मैथड नाल तुसीं करना होवे क्वेश्चन तुसीं अटैम्प्ट कर सकते हो जेकर इस तरह का क्वेश्चन तुहानूं मिलदा। इस तो बाद जिहड़ी लास्ट एक्सरसाइज है 4th चैप्टर की, उहदे विच कुछ क्वेश्चनस ने कि k दी वैल्यू लभणी हुंदी है। k नूं लभण दे क्वेश्चन ने हाँ जी, तो ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੂਲ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਮੂਲ ਸਮਾਨ ਹਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ d ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ k ਮੌਜੂਦ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ d ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਣਾ b² - 4ac। ਇਹ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ d ਨੂੰ 0 ਕਰ ਦੇਣਾ यानी कि ਇਹਦੀ जो वैल्यू आई होगी अल्टीमेटली वो भी 0 के बराबर हो जाऊगी। तो उत्थों सॉल्व करके आपां k की वैल्यू लभांगे। इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं टैस्ट दे विच। सो ये सी तुहाडा 4th चैप्टर। हाँ जी, हुण गल करते हैं आपां 5th चैप्टर की जो कि अरिथमैटिक प्रोग्रेशनस यानी कि अंक गणितक लड़ियाँ। इहदे विच तुहानूं कोई लड़ी दित्ती जाएगी a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d सोन इस फॉर्म की होंगी है। कोई भी अंक गणितक लड़ी तुसीं इहदे बेसिक जिहड़े क्वेश्चनस ने उन्हां दे विच कीता कि फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी, फर्स्ट टर्म यानी कि a, तो उस तो बाद कॉमन डिफरेंस यानी कि d। ये लभण दे क्वेश्चनस करते सी 1 मार्क के विच जिहड़े क्वेश्चनस आते सी। उस तो बाद जब अपने को AP का कोई क्वेश्चन मिलता है टैस्ट के किस तरह का होंगे, आपको कोई 3 टर्म्स दित्तियां जांदियां हैं, एनी 3 टर्म्स हाँ जी, जेकर 3 टर्म्स AP च ने आर इन AP च होणगियां तां अपने कोल एक कंडीशन लगानी हुंदी है। तुसीं क्वेश्चन नूं सॉल्व करदे आ 2b इज इक्वल्स टू a प्लस c। ये कंडीशन नूं याद रखना है जिहड़ी लगा के आपां क्वेश्चनस जिहड़े AP दे उत्ते आंदे ने उहनूं सॉल्व करते हैं। सिंपल क्वेश्चनस 2b यानी सेंटर वाली दा डबल पहली ते तीसरे दे सम दे इक्वल। ये आया कित्थों? आपां नूं पता है कि ओके कोई भी 3 टर्म्स AP दे विच होणगियां तां उन्हां दा कॉमन डिफरेंस सेम होएगा यानी कि दूजी चों पहली घटा लो, चाहे घटा दईए आपां तीजी दे विचों दूजी टर्म नूं। ये भी कॉमन डिफरेंस है, ये भी कॉमन डिफरेंस है, ये बराबर होणगियां। जदों आपां b नूं इधर लैके आवांगे a नूं उधर लैके जावांगे तो आपां नूं मिल जाएगा b प्लस b इज इक्वल्स टू c प्लस a यानी कि 2b इज इक्वल्स टू a प्लस c। ठीक है जी। सो सेंटर वाली टर्म का डबल तो पहली तो तीसरे के सम के इक्वल। ये क्वेश्चनस ये फॉर्मूला याद रखना है, क्वेश्चन दे विच आम ही यूज होंदा है। इस तो बाद अपने कोल नैक्सट जिहड़ा फार्मूला आया सी वो सी an दा, AP दी nth टर्म कड्ढण दा फार्मूला जो कि हुंदा है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n है अपने कोल नंबर ऑफ टर्म्स ते a फर्स्ट टर्म ते d सीगा कॉमन डिफरेंस यानी कि साझा अंतर। हाँ जी, ये बेस से जोड़े क्वेश्चन आते हैं वो हो सकता है कि कोई AP दी हुई है वो पूछा जा सकता है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्यावां 7 नाल भाजयोग ने या फिर कितनी संख्यावां 2 नाल भाजयोग ने। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं इस फार्मूला के बेस से। नैक्सट आता है अपने को SN का फार्मूला, SN बराबर n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। SN यानी कि जोड़फल का फॉर्मूला है। सम टू n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन बाय नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट दे विच 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू डी। हाँ जी, या फिर ये फार्मूला लगता है अपने कोल, या फिर एक होर फार्मूला हुंदा है, वो हुंदा n बाय 2 a प्लस an भी अपने को लास्ट टर्म होंदी है। इस फार्मूले नू ही आपां लिख सकते हैं n बाय 2 a प्लस l। हाँ जी, ये दोनों भी SN के फार्मूले ने, आ तो सेम ही है। an नू क्योंकि आपां लास्ट टर्म भी कहते हैं, an इज इक्वल्स टू लास्ट टर्म, सो वो जगह आपां l भी यूज़ कर लेंगे। हाँ जी, ये जिहड़ा फार्मूला है ये भी इस दे बेस ते भी क्वेश्चंस आ जाते हैं टैसट दे विच, क्योंकि उहदे विच उन्होंने पूछा हुंदा है कि ਜਿਹੜੀਆਂ भी जिस्त संख्यावां दा जोड़फल पता करो, उस तरह के क्वेश्चंस ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ फार्मूला लगा के सॉल्व होणगे। जिहदे विच भी अपने कोल जोड़फल की गल होएगी उत्थे SN का फार्मूला लगावांगे, जिथे नंबर ऑफ टर्म्स पूछियां जाणगियां कि किन्नियां ऐसियां टर्म्स ने, किन्नियां संख्यावां ने, उस केस दे विच आपां AN का फार्मूला यूज़ करांगे। हाँ जी, जो नैक्सट चैप्टर आता है अपने कोल वो है चैप्टर नंबर 6 यानी कि ट्राइंगल्स त्रिभुजां। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो मेन टॉपिक्स ने अपने कोल वो ने, सब तो पहला सिमिलैरिटी की गल हुंदी है। 6.1 ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ ब्लैंक्स ने जो सिमिलैरिटी के बेस ते ने, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ अपने कोल कि ਜਿਹੜੇ अपने गल करिए ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਮਰੂਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਮਰੂਪਤਾ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਸਮਰੂਪ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਚੱਕਰ, ਸਾਰੇ ਚੱਕਰ ਸਮਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਸਮਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਰੂਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਰੂਪ यानी कि ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। हाँ जी, तो जी समरूपता होंदी है उहदे विच आपां भुजावां दीयां लंबाइयां दे नाल अपना कंसर्न नहीं हुंदा, अपना कंसर्न हुंदा उहनां दे भुजावां दे अनुपात दे नाल। सो इहदे विच अपने कोल भुजावां दा अनुपात जरूरी हुंदा है। ते नाल दी नाल ही आपां कोणां दी गल करदे हां। कोण दो समरूप आकृतियां दे सारे कोण बराबर होणगे कोरसपोंडिंग, यानी कि जिन्होंने आप बोलते हैं संगत, संगत कोण बराबर होणगे ते संगत भुजावां दा अनुपात बराबर होएगा। सो अनुपात की गल होनी है, उत्थे अनुपात बराबर होएगा, कोणां दा अनुपात नहीं, कोण आपस च बराबर होणगे संगत। हाँ जी, उस तो बाद आती है अपने कोल मेन इहदे विच जिहड़ा सैकेंड टॉपिक है वह है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम वेरी इंपोर्टेंट। नैक्सट आंदा है अपने कोल समरूपता दीयां किहड़ियां-किहड़ियां कसौटियां ने, यानी कंडीशनस या एग्जीम्स आपां देखदे हां कि दो त्रिभुजां, क्योंकि इत्थे जाके आपां इत्थों ही ईवन अपने कोल थेल्स थ्योरम तो ही ट्राइंगल्स का कंसैप्ट शुरू हो जाएगा। ट्राइंगल्स दे विच सिमिलैरिटी दीयां गल्लां शुरू हो जाणगियां। तां दो त्रिभुजां समरूप कदों हुंदियां ने, किवें हो सकदियां, किहड़ियां-किहड़ियां कंडीशनस हुंदियां ने, उन्हां दी गल होएगी इत्थे। फिर नैक्सट आंदा है अपने कोल रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स वाली एक थ्योरम है। उहदे बेस ते जिहड़े क्वेश्चंस ने वो क्वेश्चंस काफ़ी इंपोर्टेंट है। उहदे विचों टेस्ट दे विच तुहानूं क्वेश्चन मिल सकदा है, याद रखना। सो ये सी दो समरूप त्रिभुजां क्षेत्रफल के अनुपात वाली थ्योरम। नैक्सट लास्ट बट नॉट द लीस्ट पाइथागोरस थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स, वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक टू गैट अ क्वेश्चन फ्रॉम। इहदे विचों तुहानूं क्वेश्चन मिल सकदा पाइथागोरस थ्योरम चों भी। हाँ जी, हुण गल करते हैं आपां थेल्स थ्योरम की। थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग जेकर किसी त्रिभुज दे विच मान लो यह ABC है, जेकर किसी त्रिभुज दे एक भुजा के समांतर बाकी दो भुजावां नूं भिन्न भिन्न बिंदुआं ते कटदी एक रेखा खिंची जाए तो बाकी दो भुजावां यानी AB ते AC एक ही अनुपात विच वंडियां जांदियां हन। इत्थों मिलदा है आपां नूं AD बटे DB बराबर AE बटे EC। इस बेस के उत्ते एक्सरसाइज दे विच भी क्वेश्चनस हैगे ने, तो इस बेस के उत्ते कोई ना कोई क्वेश्चन तुहानूं टैस्ट दे विच मिल सकता है। काफ़ी चांसिस ने कि इन्हां चारां दे विच्चों 1 2 3 4 इन्हां चारां दे विच्चों कोई 3 चीज़ां तुहानूं दित्तियां होणगीआं ते चौथे दी लंबाई पुछी होएगी। से आ 2 देती, आ 3 देती, आ 4 देती, तां उरे X यह पुछी होएगी। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। या फिर इनू आपां होर तरह भी लिख सकते हैं, AD बटे सारी AB बराबर AE बटे और सारी AC।
हाँ जी, ये डायरैक्ट रिजल्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं थेल्स थ्योरम के बेस ते, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ AD ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪੂਰੀ AB ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਪੂਰੀ ਲੰਬਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ABC, ਇੱਥੇ D, ਇੱਥੇ E। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ AD ਦੇਤਾ 2 ਤੇ AB ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੇ 5 ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ AE ਪੁੱਛੀ हुई है तो पूरी AC की लंबाई देती से 10। हाँ जी, इस तरह ये आपां जिहड़ा होएगा AE वो भी लभ सकते हैं, AD बटे AB बराबर AE बटे सारा AC लैके भी। सो थेल्स थ्योरम दे विच तुसीं ये दो तरीके यूज़ कर सकते हो क्वेश्चनस नूं सॉल्व करन दे लई। हाँ जी, नैक्सट आंदा है अपने कोल समरूपता दीआं कसौटियां यानी कि क्राइटेरियाज। क्राइटेरियाज ऑफ सिमिलैरिटी। हाँ जी, सब तो पहले ये SAS सिमिलैरिटी यानी कि भुजा कोण भुजा। हाँ जी, ये की हुंदा अपने कोल दो त्रिभुजा ने मान लो यह ने ABC ते दूजी है PQR। हाँ जी, यह लंबाई देती तुहानू 2 सेंटीमीटर, इधर यह 4 सेंटीमीटर, यह 3 सेंटीमीटर, इधर यह 6 सेंटीमीटर ते B कोण है जिहड़ा ओह Q कोण दे बराबर देता से 50 डिग्री, इधर भी यह 50 डिग्री है। तो अपने कोल SAS सिमिलैरिटी के थ्रू यह दोनों त्रिभुजा समरूप होणगियां ते इन्हां नूं लिखिया किस तरह जाएगा, ट्राइंगल ABC समरूप ट्राइंगल PQR। हाँ जी, इस गल का ध्यान रखना है सिमिलैरिटी दे विच कि जिहड़ा इत्थे अपने कोल एंगल B जेकर एंगल Q के बराबर है तो इधर जेकर मैं B सेंटर च लिखिया तो उधर Q भी जिहड़ा है वो सेंटर च ही आएगा। हाँ जी, दूजी अपने कोल जिहड़ी है क्राइटेरिया वो है एंगल एंगल सिमिलैरिटी। एंगल एंगल यानी कि कोण कोण, इनू आपां कोण 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 ना कह के कल्ला कोण कोण भी कह सकते हैं, क्योंकि जेकर दो त्रिभुजां दे कोई दो कोण बराबर होणगे तो ओबीअसली तीजा उत्थों बराबर आ ही जाएगा। सो कि कोई दो त्रिभुजां दे विच ABC PQR कोई दो कोण बराबर हो गए से A बराबर हो गया अपने कोल R दे ते B बराबर हो गया अपने कोल P दे। तां ये दो कोण आपस च बराबर हो गए दो त्रिभुजां दे, तां अपने कोल ये दोने समरूप होणगियां त्रिभुजां ते इन्हां दा नाम किवें लिखिया जाएगा हुण ओह देख लो। पहली दा नाम तां तुसीं सिंपली त्रिभुज ABC लिख सकते हो, दूजी का जो नाम लिखना है समरूपता का निशान आ गया। ए कौन है जिहड़ा ओह कोण R दे बराबर सी, तां इत्थे जेकर A पहले नंबर ते पिया है तां ओहदे विच R पहले नंबर ते लिखिया जाएगा। इहदा कोण B ओहदे कोण P दे बराबर है, तां इत्थे दूजे नंबर ते है B तां उधर दूजे नंबर ते आएगा ओहदे बराबर कोण वाला, B दे बराबर है P तां P आएगा दूजे नंबर ते। लास्ट दे विच जो बच गया इधर C बचिया सी C आ गया, उधर Q बचिया तो Q आ गया। हाँ जी, सो जो आप पिछे गल कर रहे थे कि नाम का ध्यान रखना है, इस तरह ये नाम लिखे जाते हैं। हाँ जी, अगे जो तीजा क्राइटेरिया वो है SSS यानी कि भुजा भुजा ते भुजा, यह तीजा क्राइटेरिया। ये विच की हुंदा है, कोई दो त्रिभुज दिते होणगे PQR XYZ। हाँ जी, मान लो ये है 2 सेंटीमीटर, यह है 4 सेंटीमीटर, यह 3 सेंटीमीटर, इधर यह 6 सेंटीमीटर, यह 1 सेंटीमीटर, इधर यह 2 सेंटीमीटर। हुण इन्हां दा अनुपात देखिए तो PQ का अनुपात XY दे नाल
पी क्यू का एक्स वाई के नाल 1/2 आ रहा है, क्यू आर का वाई जैड के नाल 2/4 कटिंग करके 1/2, लास्टली पी आर का अनुपात एक्स जैड के नाल 3/6 कटिंग करके ये भी 1/2। हाँ जी, तिने अनुपात बराबर आ जाण जदों अपने कोल संगत भुजावां दे, तां आपां बोलदे हां कि दोने त्रिभुजां जिहड़ियां आपां दित्तियां गईयां ने ओह समरूप ने। किहड़ी कसौटी दे राहीं या किहड़े क्राइटेरिया के थ्रू? साइड 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 यानी कि भुजा 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 क्राइटेरिया के थ्रू ये अपने को सिमिलर हो गई। ये हाँ जी, जिहड़ा दूजा क्राइटेरिया सी एंगल एंगल यानी कि कोण कोण क्राइटेरिया, उहदे विच एक गल होर ध्यान देण वाली है। मान लो दो त्रिभुजां ने ए बी सी ते पी क्यू आर, ए बी सी के कोण ने 60 डिग्री ते 50 डिग्री, दो कोण दिते हुए ने, तो ये दिते हुए ने दो कोण, एक 70 डिग्री ते एक 60 डिग्री। तो तुहानूं पूछा जाएगा कि की ये दोने त्रिभुजां समरूप ने? जेकर तुसीं डायरैक्टली इन्हां एंगल्स नूं देखो 60 ते 50, उधर 60 ते 70, थोड़े अकॉर्डिंग एक 50 होर हुंदा तां ये दोनों समरूप हो जांदियां। सो डायरैक्टली इहनूं तुसीं ना नहीं कहना कि यह समरूप नहीं हो सकदियां, ऐसा नहीं है। पहला किसी भी एक ट्राइंगल का आखिरी एंगल आपां लभांगे। 60 50 हो गए अपने कोल 110, 110 ते तीजा कोण आ जाएगा इहदा 70 डिग्री, तीजा कोण आ गया 70। हाँ जी, हुण जेकर हुण देखिए आ त्रिभुज नूं ते ओह त्रिभुज नूं 70 ते 60 का कोण इच पिया, उधर भी 70 ते 60 का एंगल पिया अपने कोल। इहदा मतलब ये दोनों त्रिभुजां समरूप होणगियां। हाँ जी, त्रिभुज समरूप हैं। ठीक है, इस गल का ध्यान रखना। सिर्फ दो एंगल दोनों त्रिभुजां च दिते हुए तो तुसीं उन्हां नूं देख के डिसाइड नहीं करना कि त्रिभुजां समरूप हैगियां या नहीं। पहला घट्टो घट्ट किसी एक ट्राइंगल के तीनों एंगल तुहाडे कोल होण। हाँ जी, नैक्सट आ रहा है अपने कोल टॉपिक जो कि है एरियाज, रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। ये अपने कोल एक थ्योरम है जो कि हुंदी है दो समरूप त्रिभुजां के खेत्रफल का अनुपात उन्हां दियां संगत भुजावां के अनुपात के वर्ग के बराबर हुंदा है। यानी कि जेकर दो त्रिभुज ने अपने कोल ए बी सी पी क्यू आर, ये दोनों समरूप दिते हुए ने आपां नूं। त्रिभुज ए बी सी समरूप दी हुई है त्रिभुज पी क्यू आर दे, तां इन्हां त्रिभुजां के खेत्रफल का अनुपात यानी कि एरिया ट्राइंगल ए बी सी ओवर एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर बराबर होएगा। इन्हां दे एरियाज दी रेशो यानी अनुपात बराबर होएगा उन्हां दियां संगत भुजावां। संगत भुजावां की गल करांगे तो ए बी दे नाल संगत भुजा आएगी पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू ओदा स्केयर बराबर अगली संगत भुजा बी सी दे नाल क्यू आर उन्हां दे अनुपात दा वर्ग, ते लास्ट बच गया अपने कोल ए ते सी उधरों पी ते आर, ए सी बटे पी आर ओदा स्केयर। हाँ जी, ये होएगी अपने को लास्ट थ्योरम, तो ये रिजल्ट यूज हुंदा है। इस बेस दे उत्ते कई क्वेश्चंस तुहानूं टेस्ट च मिल सकता है, जिवें कि एक्सरसाइज 6.4 का जिहड़ा फर्स्ट क्वेश्चन है जिहदे विच इन्हां दोनों के एरियाज दिते होणगे तुहानूं, ते नाल ही इन्हां दियां संगत भुजावां दे विचों किसी एक दी भुजा दित्ती होएगी। हाँ जी, ये भी एरिया दिता होएगा, ये भी एरिया दिता होएगा। ए बी ते पी क्यू चो सपोज एक देती तो दूजी मिसिंग होएगी। सो उस तरह का क्वेश्चन किवें होएगा? एरिया ट्राइंगल ए बी सी उस केस दे विच ओवर एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर बराबर तुसी लाओगे ए बी बटे पी क्यू इहदा स्केयर। इहदे चों जिहड़ियां तीन चीज़ां तुहानूं कोई दित्तियां होणगियां उन्हां दियां वैल्यूज़ भर के उत्थों तुसी चौथी दी वैल्यू कड्डोगे। हाँ जी, हुण लास्ट दे विच आ रही है अपने कोल पाइथागोरस थ्योरम, जिसकी स्टेटमेंट हुंदी है किसी भी समकोणी त्रिभुज दे विच करण दा वर्ग बाकी दो भुजावां दे वर्ग दे जोड़ दे बराबर हुंदा है। यानी कि करण दी दो बराबर लंब दी दो प्लस आधार दी दो। हाँ जी, इस दे बेस ते जिहड़ा तुहानूं क्वेश्चन पूछा जा सकता है टेस्ट दे विच वो किस तरह का होएगा कि मान लो तुहानूं कोई त्रिभुज दियां तीन भुजावां दियां लंबाइयां देतियां ते उस तो बाद पूछा गया कि की ये जिहड़ियां भुजावां दियां लंबाइयां ने यह भुजावां किसी
ਸਮਕੋਣੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਮਕੋਣੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ AB ਹੈ, ਦੂਜੀ BC ਹੈ ਤੇ ਤੀਜੀ AC ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ ਵਰਗ। AB ਦਾ ਵਰਗ, BC ਦਾ ਵਰਗ ਤੇ AC ਦਾ ਵਰਗ। ਜੇ ਵਰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਤੀਜੀ ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ AB ਦੀ 2 ਪਲੱਸ AC ਦੀ 2 ਬਰਾਬਰ BC ਦੀ 2, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਕੋਣੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਕੋਣ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇਸ ਭੁਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ B ਤੇ C ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ A ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, BC ਭੁਜਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ A ਕੋਣ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ A ਕੋਣ 90 ਡਿਗਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਈਥਾਗੋਰੀਅਨ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਈਥਾਗੋਰੀਅਨ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਨਰਲੀ 3 4 5, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਮ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ 6 8 10 ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਦਾ ਵਰਗ ਪਲੱਸ 8 ਦਾ ਵਰਗ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ 10 ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ 5 12 13 ਦਾ, 12 ਦਾ ਵਰਗ ਤੇ 5 ਦੇ ਵਰਗ ਦਾ ਜੋੜ ਆਉਂਦਾ 13 ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8 15 17 ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਦਾ ਵਰਗ 225 ਤੇ 8 ਦਾ ਵਰਗ 64 ਕਰਕੇ 299 ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਕਿ 17 ਦਾ ਵਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਈਥਾਗੋਰੀਅਨ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਪਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 6th ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਚੈਪਟਰਸ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ।